शुरू करते हैं, then one more profitability analysis we prepare. So let's see now. We have prepared one report yesterday for one profit center. Okay. Let's revision हम शुरू करेंगे, उसके बाद you will try to understand now. See, profit center का main purpose है profitability analysis. कनेक्टिविटी चला गया. स्क्रीन दिख रहा है ना? जी सर. Okay, coming to controlling profit center accounting. See, there are reports are there. Interactive reports. First, let us review this report first. S_ALR_8701. This is to review plan versus profit report. So first give your controlling area, which is SAI. Okay, I want to see the report. We have prepared for 9th period, remember. Plan version, 0 version. Okay, and this is group. P&L items group. You know, we have P&L and balance sheet. अब देखिए. So I am seeing the report at our company code level now. Yes sir. Okay, let me explain this now. Okay, at company code level, there are two profit center here. You can see, I'll show you now one by one. इसको पहले समझने का कोशिश कीजिए. This is called iterative. Iterative means what? Drill down. आप देखो, आप account number wise आप देख सकते हो, right? Period wise आप देख सकते हो. For example, I will click one by one. I'll show you period wise. देखो, दिसंबर का ही हमने पोस्ट किया. रिमेंबर, दिसंबर का हमने पोस्ट किया है. अगर आप पूरा 12 महीने का करते हो, वन बाय वन यू कैन सी मंथ वाइज प्रॉफिटेबिलिटी. यू कैन सी हियर. दिस इज द प्लान्ड प्रॉफिटेबिलिटी, दिस इज द एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी, दिस ना वेरिएंस है. अगर इसको यू कैन ब्रेकअप इनटू प्रॉफिट सेंटर वाइज. वी हैव टू प्रॉफिट सेंटर, रिमेंबर. देखिए, राइट? समझ रहे हैं ना? वी हैव टू प्रॉफिट सेंटर, मेंस रेडीमेड गारमेंट, चिल्ड्रन. कुल मिला के अपना प्लान 20 लाख प्रॉफिट है. उसमें हमने एक्चुअल एक पोस्ट किया है, दूसरा एक्चुअल अभी पोस्ट करेंगे. बिकॉज यस्टरडे वी पोस्टेड ओनली वन कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर. अभी ये करेंगे, सो ये चेंज हो जाएगा. देखो, ओके, लेट मी कम बैक टू दिस आफ्टरवर्ड्स, राइट? सिमिलरली दिस कैन बी एट द कंपनी कोड लेवल. दिस इज टोटल. ओके, टोटल साई गारमेंट का प्रॉफिट इतना है. अगर ब्रेकअप चाहिए तो यहां जाइए. सी हियर, it gives a breakup. If you have 10 profit center, you will get the breakup of that. समझे ना? So you will know which profit center is making more profit, which is giving loss, so that you can think of improving now, right? Similarly, you can have plant wise or material wise, everything is there. This is called drill down report. Let me now post something for children garment and see the report once again. Okay, एक्चुअल पोस्टिंग करेंगे हमने. एक्चुअल नहीं है, ओनली प्लान है.
right? Okay. Let us see now. Actually, you have to post in FI. Always actual posting will be in FI only. Financial accounting, general ledger, document entry. Okay. पहले सेल्स पोस्टिंग करेंगे, राइट? सेल्स पोस्टिंग करेंगे. सेल्स कहां पोस्ट करेंगे? AR. Sales is AR always, remember now. Account receivable. Because when you From sell it, entry invoice. when we sell, there is an invoice is there. Now I am selling, there is an invoice for children garment, assuming now, okay? Children garment. Okay. So let us say some customer. Let's post it today only. So this is our invoice. Okay. Well, 40 lakhs का invoice है. Sales invoice. Sale of children garment. Enter. Up GL. You know, we have a separate GL account for children garment. देखिए, men garment हो गया, children garment है. Shift and star. Shift and plus. Or because this is a profit center, okay, you can select cost center now. Cost center से profit center गया. So this is दूसरा cost center. You know, we have tailoring cost center, cutting cost center. So हम इसको डालेगा, tailoring cost center. First enter, let's see now what happens. It has taken now. Okay. It has taken now. Then you can simulate now. So this is going to be entry. A customer will be debited and children garment revenue will be credited. Let's post it. So income side has been posted now. Okay. Now let's post the expenditure side. Expenditure will be general ledger. FB50. Journal entry. Again today. Enter. Select. So we elect 2-3 accounts, material consumption, salary, वगैरह वगैरह. See, there is a material consumption. Debit. Okay. Say 30 lakhs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. One more. Okay, 30 lakhs. 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ठीक है. Then because this is a cost element, you will have to put cost center. Okay. Tailoring cost center. ये वाला. Enter. Similarly, select salary. Any expenditure you can post it.
Okay. Let's say 5 lakh salary. तो 35 lakhs खर्चा कर दिया हमने. जी सर. And because this is a JV, either payment or provision. Okay, it's green now. So let us post it. Okay, let's see now. See, one more thing you must see. Whenever profit center document is created, okay, आपको 3 document मिलेगा. Let us see what are the documents are there. Document display. One FI document. This is called FI document. अगर आप environment में जाओगे, environment and document environment, accounting document, आपको 3 मिलेगा. Can you see here? There are 3 documents are there simultaneously. First is called JV, journal entry, FI का. Second one is relating to profit center accounting, अलग document है. Okay. Third one is CO, cost center accounting, because expenditure has to go to cost center first, then profit center. Okay. Yes sir. Profitability will be analyzed here. That means simultaneously there are. This is called integration of FI and CO. Remember, आप FI entry में करते हो, that pulls to CO. From CO it goes to profitability analysis. Okay. Okay sir. That is the integration now. तो अभी आप report जाइए. Let's see the report now. We have profitability report for both the profit center as well as total company code. Controlling reports. Again, let's see first this report, then other reports are there. Now you see the picture different now. Okay. क्या है अभी? Let's see now. Actual profit nil हो गया अभी. क्यों सर? देखो actual profit nil हो गया. Yeah. लॉस भी नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं है. खर्चा इक्वल टू एक्सपेंडिचर. देखिए हम बता रहे हैं. सी अंडरस्टैंड नाउ, एक्चुअल में आइए. राइट. मेंस गारमेंट में 70 लाख 75 लाख इनकम है. ओके. और इसमें कितना है? चिल्ड्रन में 40 लाख है. उतना खर्चा भी करेक्ट है, खर्चा भी उतना ही हो गया. लेकिन सी ओवरऑल कंपनी कोड में प्रॉफिटेबिलिटी निल. लेकिन अगर आप प्रॉफिट सेंटर वाइज देखोगे, देयर इज प्लस एंड माइनस. देखो देखो हम प्रॉफिट सेंटर वाइज दिखाते हैं. कैन यू सी यार? आप एक्चुअल में देखो. हेलो आशीष. यस सर, आई एम हियर ओनली. नो, आप आंसर करो. हियरिंग नहीं है, आप आंसर करो. अच्छा. कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ चिल्ड्रन गारमेंट में? आप देख के बताओ. चिल्ड्रन गारमेंट में मेरे क्वेश्चन समझ लो. आई एम आस्किंग फ्रॉम द 5 लाख सर. 5 लाख. चिल्ड्रन गारमेंट में कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ? 5 लाख से प्रॉफिट हुआ. हाँ देखो. मेन गारमेंट में कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ? मेन गारमेंट में भी सर 5 लाख. हाँ, तो वो दोनों ऑफसेट हो गया. यस यस. दैट इज व्हाई प्रॉफिटेबिलिटी इज निल नाउ.
राइट? ओके ओके, यस अगर सर। आप मैनेजिंग डायरेक्टर हो इस कंपनी का, हम्म। राइट, आपको ये रिपोर्ट दिया जाएगा, आप क्या बोलोगे? बोलिए, इसको क्या बोलोगे? मेन गारमेंट का इंचार्ज जो होता है ना, प्रॉफिट हम्म। सेंटर एक इंचार्ज है, उसको बुलाओगे, क्या बोलोगे उसको? बोलो, ये रिपोर्ट आपके सामने, हम मैनेजिंग डायरेक्टर है, हमारे सामने रखा जाए, ओके, आई विल ओके। आस्क हिम, ओके, बोलेगा, सी आई हैव आस्क्ड यू टू गिव अ प्रॉफिट ऑफ 10 lakhs, हम्म। whereas you have given me a loss of 15 lakhs, 5 lakhs. हम्म। So what is the problem with you? कहाँ खर्चा किया आपने? तो व्हाट यू विल डू, हम उसको एनालाइज करेंगे, दिखाएगा, देखो देखो उसमें क्या आएगा, या अकाउंट नंबर वाइज आइए, इधर इधर देखिए, सी व्हाट यू शुड डू इज सिलेक्ट दिस, अकाउंट नंबर वाइज ब्रेकअप ले सकते हो, पूरा डिटेल मिल जाएगा आपको, समझे ना? यस सर। तो हमने जाके पूछेगा इससे, देखो कि क्यों आपने ज्यादा कंज्यूम किया है, राइट, हु इज रिस्पॉन्सिबल, आपको वेरिएशन मिलेगा इधर में, प्लस और माइनस, नॉट ओनली दैट। सैलरी एक्सपेंसेस में। हाँ, आप देखो खर्चा, यू सी मटेरियल कंजम्पशन, आई विल टेल बोथ ऑफ यू, सी आई हैव गिवन यू अ प्लान ऑफ 65 lakhs मटेरियल कंजम्पशन, समझे ना? हम्म। ये लोग कितना खर्चा किया? 75 lakhs। 76 लाख। तो आई आस्क हिम नाउ, 10 लाख क्यों खर्चा किए ज्यादा, व्हाट इज द प्रॉब्लम, टेल मी नाउ, देन दे विल हाउ टू गेट द डिटेल्स, आई विल शो यू नाउ, सिलेक्ट दिस, फर्दर जा सकते हो फर्दर, ओके, लेट मी शो यू, डबल क्लिक दैट, यू नीड नॉट गो एनीवेयर, ये आएगा ब्रेकअप, देखो, ओके, आप देखिए, आप वहां पर फर्दर डिटेल जा सकते हो, लेट मी सी वेयर इज द डिटेल्स हियर, यहाँ एक डॉक्यूमेंट मिलेगा पूरा, वहां यहीं से आप पकड़ सकते हो कहां पर है, अदर डॉक्यूमेंट्स होता है, ओके, देर इज वन, कहाँ दिख रहा है इधर में आपको, यहीं से आपको पता चलेगा कि क्या नो दिख रहा है, अदरवाइज आई विल टेक यू टू अनदर रिपोर्ट, सी दैट इज द पर्पज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। अगर आप कंपनी कोड में रहोगे आपको पता चलेगा, ओके, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, चलेगा, राइट, ओके, नाउ लेट्स गो टू डिटेल्स फर्दर, रिपोर्ट में देखिए, अब हम रिपोर्ट में आएंगे, डिटेल्स, लाइन आइटम रिपोर्ट्स, ओके। ठीक है, प्रॉफिट सेंटर एक्चुअल रिपोर्ट, इसमें आपको प्रॉफिट सेंटर वाइज एक्चुअल पूरा रिपोर्ट मिलेगा, ओके, ये देखिए, 9th पीरियड, कंपनी कोड कंट्रोल ले लिया, आप प्रॉफिट सेंटर वाइज ले लो, आप तो देखो, आप देखिए क्या होता है, हाँ, नाउ इसी ईयर हमने इसको सॉर्ट आउट कर सकता है, आप पूरा देख रहे हो ना, लेट जी अस सर। सिलेक्ट नाउ वन बाय वन नाउ, इसको हमने एक प्रॉफिट सेंटर देखेगा पहले, व्हाट इज माय प्रॉफिट सेंटर, साई 1, रिमेंबर, ये साई 2 हो गया, ओके, इसको साई 1 पहले देखेगा पहले, आई एम ओनली सीइंग फर्स्ट साई 1 रिपोर्ट, नाउ ये देखिए, आपको ब्रेकअप मिल रहा है ना, समझ गया ना? यस सर। तो इतना हमारा एक्चुअल है, ओके, सेल्स है, ये एक्सपेंडिचर है, तो इसलिए एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, लॉस हो गया, ओके, सिमिलरली
If I select the other one, so आपको हेड वाइज पूरा मिलेगा इधर में, जैसा जैसा एंट्री होगा यहाँ पूरा आएगा। इसको आप पी एंड इसमें जा सकते हो, प्रिंट में देखे ले सकते हो, ग्राफ गिफ सब बना सकते हो इधर, सब टोटल ग्राफ सब कुछ है। दैट इज ओके। रिपोर्टिंग इज अ डिफरेंट पार्ट। नाउ अगर फर्दर हम जानना चाहे हो क्या करेंगे हमने, सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू। प्लान आइटम भी है, ओपन आइटम, ओके सी दैट। नाउ लिस्ट ओरिएंटेड रिपोर्ट, वन मोर रिपोर्ट साइड। See now what happens. So many reports are there. आपका कनेक्टिविटी ये मिल गया पासवर्ड? नहीं सर, मैम से बोला भी कुछ मेल नहीं है। कल भी हम बोले थे, टोल्ड हर। वो बिजी हो जा रही है, पता नहीं कहाँ। नहीं बिजी बिजी की बात नहीं है, सबको अपना काम करना पड़ेगा ना। हाँ सर, सही बोल रहे। शी हैज टू सेंड समबडी, आई मीन मैसेज भेजना है और करना है। आई विल वंस अगेन रिमाइंड, कल बोला था हमने इमीडिएटली आफ्टर दैट। मैंने बोला था, मैंने बात भी किया था, बोला था मैम रिज्यूम भी भेजने के लिए, तो मैं थोड़ा देख के उसमें बना लूंगा। सर उसमें मैं एक्सपीरियंस भी हूँ, तो उसमें ऐड करना चाहिए ना एक्सपीरियंस। हाँ 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 हाँ। बट मैं एससीपी में एक्सपीरियंस नहीं हूँ, ठीक है। हाँ एससीपी भी मेरा एक्सपीरियंस नहीं है सर। नहीं, आपको एसएपी में एक्सपीरियंस नहीं दिखाना चाहिए। तो आपका डोमेन में अकाउंट में जो भी नॉलेज हो आपको उसके बारे में शॉर्ट लिखना चाहिए। ओके हाँ वो तो है मेरे पास, वो करना ही पड़ेगा। उसके बाद एसएपी में हमने 2 ट्रेनिंग प्रोजेक्ट किया, लिखना पड़ेगा आपको। अच्छा 2 ट्रेनिंग प्रोजेक्ट। हाँ ट्रेनिंग प्रोजेक्ट किया। एक तो जो हम जो दिखा रहे हैं ना, यू कैन से गारमेंट, डोंट नेम द नेम ऑफ द कंपनी को, गारमेंट जो हम सही गारमेंट कर रहे हैं ना, दैट्स व्हाट द प्रोजेक्ट यार। आपने क्या करना पड़ेगा, आई हैव टेकन ए ट्रेनिंग इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ओके उसमें हमने क्या किया है, जनरल लेजर किया है, एपी किया है, एआर किया है, सीओ, जो जितना आप बोल सकते हो उतना बोल सकते हो, समझे ना। बुलेट पॉइंट में, स्मॉल पॉइंट, नॉट डिटेल्स। सी आई हैव अंडरस्टूड, लेट्स से जीएसटी, आई हैव अंडरस्टूड से कैश जर्नल, जो भी आपने किया है ना बुलेट पॉइंट, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमने जो मटेरियल दिया है ना आपको, हेलो जी जी सर बताइए। वो मटेरियल में आप थोड़ा सा देख लीजिए पहले, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बुलेट पॉइंट में डालिए, एक एक में, जनरल लेजर में एक, ओपन आइटम क्लियरिंग, जो भी आप समझते हो, ओके आई कांट टेल यू। और रिकरिंग एंट्री आप अगर समझ गए हो तो रिकरिंग एंट्री। लेकिन एक चीज है, आप आपका रिज्यूम में जब ये पॉइंट दिखाओगे उसमें आपको परफेक्शन होना चाहिए इंटरव्यू के लिए। जी जी सर। अगर आप एक पॉइंट बोलोगे, सपोज आई एम जस्ट गिविंग जीएसटी, राइट, जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन, आई हैव टेकन ट्रेनिंग, व्हाटएवर मे बी, अगर लिखोगे तो यू शुड बी एबल टू आंसर एटलीस्ट बेसिक क्वेश्चंस, नॉट कंप्लीटली, समझे ना। यस सर, यस सर, यस करेक्ट। तो जीएसटी प्रोसीजर, व्हाटएवर यू अंडरस्टैंड, लिखने के बाद आप उस पे जो लिखे उसी पर आप ज्यादा कंसंट्रेट करो बिफोर गोइंग टू इंटरव्यू। अगर साइलेंट हो गए तो दे विल आस्क यू मेनी क्वेश्चन, लीव इट नाउ, एवरीबॉडी नीड नॉट नो एवरीथिंग, समझे ना। ओके तो वही है, देखो ये अनदर रिपोर्ट है, समझ गया ना। जी सर। So this is at the another report again, cost center, we have 2 profit center and ये plan है, ये budget है, whatever is that, okay? ओके उसका ब्रेकअप यहाँ मिलता है, right? This is basically, you can select now. हाँ, this is what I mean now. So जी यहाँ select करके हमने आपको इसका actual line item जा सकते हो।
here. You can come to the same screen. Remember? Yes, sir. फिर से देखना चाह रहे हो? I'll show you. Suppose I want to know this particular children garment का how this 5 lakhs profit has come, right? Yes, What is sir. the breakup? Actual price. तो आपको ये select करो, ये डबल क्लिक कीजिए उसको, Okay. तो यहाँ आएगा, ये देखो, Actual line. एक्चुअल लाइन items. आइटम आएगा, समझे ना? हम्म. उसको डबल क्लिक करोगे, आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, उसका ब्रेकअप. सी हियर, Okay, okay. सी इधर, दैट्स कॉल्ड ब्रेकडाउन, कंप्लीट आपको मिल जाएगा. 10 जीएल आइटम है, 10 भी यहाँ पर दिखेगा. ओके, Okay, sir. सो यहाँ से फिर आप फर्दर जा सकते हो. सपोज आई वांट टू सिलेक्ट डॉक्यूमेंट नंबर 9, एंटर करो, अगेन इट गोस टू द सोर्स डॉक्यूमेंट. वेरी सिंपल. देखिए ये ओरिजिनल हमने जहाँ पोस्ट किया था. जी सर. Okay, so this is what is basically. Okay, so with this our profit center accounting is also complete. Abhi another 10 minutes I am going to spend to giving you general idea. Okay, right? General idea about what you must, as a SAP consultant, FICO consultant, generally you must have idea, right? पहले कीजिए आप. See, generally you think, you must generally think from the business point of view. Don't think everything from SAP point of view. समझे ना? जी सर, correct. Because SAP is only a tool to manage financial accounting. That's it. So what is important is understanding of the financial accounting basics is important. Yes. उसको SAP में कैसा मैप किया जाएगा? That is the purpose of training. देखिए, हमने I can only tell you what is the profitability analysis. But profitability analysis basically क्या? वो income होना चाहिए, expenditure होना चाहिए. That concept is already there in accounting, is it not? Yes sir. Yes sir. Right? So you must now onwards you should start thinking more of a business than SAP. SAP भी चाहिए, no doubt. Basic things शुरू करिए. See, what is journal entry? ऐसा सोचो. What is journal entry? आप बोल सकते हो what is journal entry? बोलिए ना. Where we are maintaining the transaction. नहीं, वैसा नहीं. Like part. वो तो जनरल vendor name. आई एम वेरी स्पेसिफिक. बिजनेस ये पूछेगा जर्नल एंट्री मतलब क्या होता है. मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट सबको मालूम है. Yes sir. तो देखो व्हाट इज जर्नल एंट्री. आई टेल यू. अगर एक ट्रांजैक्शन है, राइट, जिसका ऑल द अकाउंट्स आर appearing in one particular ledger, that is a journal entry. मतलब देखो आप जीएल देखिए. जीएल में क्या होता है? सैलरी एक्सपेंडिचर, बैंक एक्सपेंडिचर, वो सब जीएल का अकाउंट है ना. Yes sir, correct. इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर, and that's called JV, journal entry. Yes So sir. journal is a basic accounting document where you are all the accounts are in one place. In one place. दूसरा देखिए, अगर आप वेंडर इनवॉइस को पोस्ट करोगे, राइट, कैन इट बी ए जर्नल एंट्री? समझिए. नहीं. क्यों नहीं है? No sir. बिकॉज वेंडर सब लेजर में रहेगा, सब लेजर. इन्वेंट्री आ रही है जीएल में रहेगा. समझे ना? समझ गए ना? Yes sir. That is what is journal entry. Journal entry means of all the accounts एक ही में रहेगा. That is the journal. Right? Yes sir, correct. So that must be clear. Then दूसरा हम जनरली क्वेश्चन पूछेंगे. See generally. Okay, journal entry जनरल समझ गया. तो अभी नेक्स्ट पार्ट आपको जाना पड़ेगा. आप जो भी एक अकाउंट है, ओके, उसको आप डेबिट एंड क्रेडिट कैसे डिसाइड करते हो? सी आई एम आस्किंग नाउ, राइट? जी सर. सपोज आई एम गिवन वन अकाउंट, रेंट अकाउंट. ओके, हम जस्ट रेंट अकाउंट है.
if I give rent account, can you say whether with only this information, can you say whether this rent account will be debit account or credit account? बोल सकते हो? जी सर। बोल सकते हो? जी सर। नहीं, wrong है. Because whether to debit or credit comes from the transaction. हम बताएंगे. अच्छा। See, अगर rent received है, rent paid है, ये दोनों अलग अलग ट्रांजैक्शन है. समझे ना? Rent paid क्या है? It is an expenditure. Then you can say it is debit. अगर rent receive करते हो, that's an income. That is credit. Remember? Credit. Yes sir. So आपको ये सोचना पड़ेगा. First transaction आपको understand करना पड़ेगा. Based on the transaction, आपको account identify करना पड़ेगा. What are the accounts here? जैसा rent paid में दो account क्या है? एक तो rent account हो गया, expenditure side. एक तो cash account और bank account पेमेंट के लिए. समझे ना? हेलो. जी जी सर बोलिए. मैं उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? आफ्टर आइडेंटिफाइंग द अकाउंट्स इन अ ट्रांजैक्शन, देन आपको वो कार्डिनल प्रिंसिपल मेंटली सोचना पड़ेगा. क्या कार्डिनल प्रिंसिपल है? नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट. रिमेंबर? जी सर. आपको अभी मालूम होगा. बेसिकली हमने बीकॉम में पढ़े हैं इसको. एमबीए में, बीकॉम में यही होता है. हाँ अभी देखिए, सही बोल. अगर रियल अकाउंट है, अकाउंटिंग एंट्री क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. व्हाट गोज आउट. राइट? समझ गया? अगर कैश आ रहा है डेबिट करो, कैश जा रहा है क्रेडिट करो. राइट? दैट्स अ रियल अकाउंट. रियल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. द गिवर. वो पार्टी अकाउंट देखो, पार्टी कस्टमर और वेंडर में ही होता है. राइट? जी सर. See, why are you crediting vendor? Because he is giving you the material. Credit the giver. Why are you debiting customer? Invoice जब post कर रहे हो ना? Because he is receiving the money, material from us. Material from us. हाँ, debit the receiver, credit the giver. समझा ना? Yes sir. Similarly, nominal account. Nominal account क्या होता है? जिसका tangible नहीं है. See, either physical shape नहीं है और personal account नहीं है, वो nominal account है. रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट गेन्स एंड इनकम. ऑल गेन्स एंड इनकम. सेल इनकम. देखो सेल है, सेल इज एन इनकम है ना, तो आप सेल को हमेशा क्रेडिट कर रहे हो, मटेरियल को और इलेक्ट्रिसिटी को हमेशा डेबिट कर रहे हो. समझे ना? जी सर. बिकॉज इट इज एन एक्सपेंडिचर. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स. रिमेंबर? इनकम्स. तो सेल्स को इनकम कर रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो. ये फंडामेंटल है. ये अगर जब तक आप ठीक से समझोगे नहीं, आपको अब देखो असेट आएगा. देखो सिंपल देखो, दिस इज व्हाट इज आई वांटेड टू रिव्यू विद यू पीपल. बिकॉज जब तक आप इसको पकड़ेगे नहीं, आपको अकाउंट इसमें नहीं आएगा, पकड़ में नहीं आएगा. है ना? करेक्ट सर. देखो एक असेट खरीदते हो, अपने लैपटॉप खरीदते हो. आप लैपटॉप को क्यों डेबिट करते हो? बोलो. Why are you debiting laptop account? What is the reason? Because laptop is a real account, a physically touch real account. Yes sir. Rule क्या है real account में? Debit what comes in. Debit what comes in. Laptop is coming to you. Yes sir. And what goes out? पैसा जा रहा है. हाँ, पैसा जा रहा है और इनवॉइस आ रहा है, वेंडर को क्रेडिट कर रहे हो आप. जी सर. सेम थिंग यार. आप लेजर देखोगे, जनरल लेजर और वेंडर लेजर, यही फंडा है. एसएपी में जहाँ टी कोड है वो तो ऑटोमेटिकली आएगा और प्रैक्टिस से आएगा वो. ओके. जी सर. व्हाट एन इंटरव्यूअर लुक्स फ्रॉम यू इज नॉट द एसएपी ट्रांजैक्शन कोड. डायरेक्टली कोई नहीं पूछेगा अनलेस वेरी वेरी लोअर लेवल. राइट? वो भी पूछ सकता है, लेकिन वेरी वेरी लो. बेसिक चीज आना चाहिए. यू कैन नॉट रिमेंबर एवरी ट्रांजैक्शन कोड. समझे ना? राइट करेक्ट. लेकिन आपको क्या होना चाहिए, एसएपी में कहाँ हम इसको ढूंढ सकते हैं वो होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अब देखो, आपको उसके लिए आपको एसएपी का
कस्टमाइजेशन का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। हम AR में जाएंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ ट्रांजैक्शन एंट्री यहाँ करेंगे, समझे ना? जी सर। दैट्स इट, सिंपल। तो आप नेक्स्ट टाइम जब रिव्यू आप प्रैक्टिस करते हो ये याद रखो, राइट? ओके ओके। Give more focus on SPRO side, not on the transaction side. That is ओके। configuration side. SPRO मतलब configuration side. कॉन्फ़िगरेशन। लॉजिक का पकड़ो, लॉजिक पकड़ो, समझा? जी सर। जब तक आप लॉजिक इसमें नहीं पकड़ोगे तो ये आपका ये इंटरव्यू फेसिंग में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बस इसी देखो, चीज one के more लिए सर। example I'll give and with that we'll close. Suppose if you remember, वेंडर को हमने दो ग्रुप में बांटा, समझा? वेंडर, जी। सप्लायर, एक तो मटेरियल वेंडर ग्रुप है, एक तो सर्विस वेंडर है। जी सर। राइट? क्यों किया है? समझ लीजिए क्यों किया है। अकाउंटिंग एंट्री अलग होता है। ओके। मटेरियल इज एन इन्वेंट्री, दैट इज ए बैलेंस शीट आइटम, रिमेंबर। स्टॉक इज ए बैलेंस शीट आइटम। बैलेंस शीट आइटम। सो बैलेंस शीट अलग है, P&L अलग है। सर्विस इज ए P&L एक्सपेंडिचर। जी सर। ऑडिट इज ए सर्विस, ऑडिटर एक बिल देता है, बिल देता है। तो ऑडिट इज नॉट ए इन्वेंट्री, इज इट नॉट? इट इज नॉट ए स्टॉक, so it has to खर्चा डायरेक्ट यहाँ जाओगे। That is the logic here. That is why we have categorized vendor into two groups, customer into two groups. एक डोमेस्टिक कस्टमर, एक लोकल कस्टमर। क्यों किया है? क्यों किया बोलो? कस्टमर को आप याद होगा ना, डोमेस्टिक कस्टमर एंड फॉरेन कस्टमर हमने दो ग्रुप किया है। यस सर। क्यों किया है बोलो? देखिए यही लॉजिक है। दोनों टैक्सेशन अलग है, टैक्सेशन अलग है एक्सपोर्ट में दोनों टैक्स का। नहीं है, इसमें GST है। यस सर। तो ये सब बिजनेस का ना ये है, तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो। ओके SAP में ओके। ऐसे मतलब, ओके। यस सर, यही छोटी छोटी चीज जो बेसिक है सर, जो आपसे सीखने को मिलता है थोड़ा सा इसी। नहीं देखो, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। आप जब तक जी आप एंड देखो, ये ट्रेनिंग तो जस्ट हम, जैसा हमने कहा होता है, देखो, आई कैन शो दी वाटर टू दी हॉर्स, आई कैन नॉट मेक दी हॉर्स टू ड्रिंक दी वाटर, है ना? घोड़े को हम पानी दिखा सकते हैं, यहाँ है, यहाँ जाने से आपको जी पानी जी मिलेगा कि नहीं? जी सर, करेक्ट। पानी तो नहीं पिला सकते है ना हमने, नहीं सर। पीना तो घोड़े को ही है कि नहीं? राइट? वी कैन ओनली शो दी वाटर, वो यहाँ पर होने से आपको पानी मिल जाएगा, यहाँ थोड़ा आगे जाइए पानी मिल जाएगा शायद, राइट? जी जी करेक्ट। एवरीथिंग कैन नॉट बी, देयर इज अ लिमिटेशन। 2 महीने में कितना आप दे सकते हो, 3 महीने में कितना कर सकते हो, राइट? जी जी करेक्ट सर। इसके बाद जो आपको सीखना है, जहां आपका ये है, ऑफकोर्स सबको तो एम्प्लॉयमेंट चाहिए, नो डाउट इन दैट, बट बेसिक तो आपको मेहनत करना पड़ेगा ना, जी जी वो तो सही बात है सर। तो है ना? कुछ नहीं आएगा तो फिर कि कोई जो लेगा आपको नहीं ना। एम्प्लॉय करेगा वो कम से कम कुछ तो आपसे डिमांड करेगा ही, ठीक है ना? जी सर श्योर। बिठा बिठा के तो पैसा नहीं देगा ना, नहीं नहीं कोई भी नहीं दे रहा सर इस टाइम तो। और होना भी नहीं चाहिए, राइट? अरे यू हैव टू अर्न फॉर योर सेल्फ यार, उसके लिए यस आपको सर। नॉलेज चाहिए, बेसिक नॉलेज तो चाहिए ही। उसके बाद आप जितना इंप्रूव कर सकते हो उतना आपका तरक्की होगी, है कि नहीं? जी सर करेक्ट इट्स इन करेक्ट। योर हैंड। सी, trainer, however good or however bad he is, he can only guide you. No no sir, you are a best teacher. I have learned lots of things with you नहीं sir. नहीं नहीं, हम I'm जनरली वो very नहीं glad. बोल रहे, जनरली यही है मेरा कंसर्न यही है। लोग क्या करते हैं, पहले पहले लाइट ले लेते हैं, जी जी। उसके बाद जैसे जैसा क्लोज होते रहता है, देन उनको इंटरेस्ट नहीं रहता होगा, कुछ भी हो, है ये नहीं? ओके, थैंक यू, सी यू देन। तो विथ दिस वी विल कंप्लीट द कोर्स, राइट? Okay. बट एज आई टोल्ड यू, नेक्स्ट वीक में आप जब भी हमें एक मेल दे दीजिए, और यू कैन फोन मी अप आल्सो, समझे ना? और वंस यू आर रेडी, again we will review, and we will, any question is there we will review, or
If you are not ready, I can take another 2-3 classes extra, make a complete Okay. revision. समझा ना? Yes, sir. Sure. No Another problem. 3 classes I can attend. Okay. I will check with the others also. I have sent a mail to them if they are ready. Otherwise, आपको हम ले लेंगे. Okay. At least you are regular. I have seen one thing. You are almost regular. Except पहले आप थोड़ा 1-2 दिन इधर हुआ था. उसके बाद you are the only regular person here. Yes, sir. वो साई ज्वाइन किया, वो इरेगुलर हो गया, उसको हमने दूसरा बैच में डाला, वो अभी रेगुलर नहीं है, उसको हम निकाल दिया अभी. ओके